نہیں شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا واقعی یہ ہے اور وی آر پراؤڈ آف ہم، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بریک فٹ پہ نہ ہوتے اور نہ ہے اور نہ پارٹی اس کو کر رہی ہے. ابھی بھی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں بھی اس کا نام ہے، تو ہی از آلویز دیئر ود اس. چیئرمین صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں. میری کھینچاتانی ہو رہی ہے اور جو کر رہے ہیں اب کل کے ان کے ساتھ میں کروں گا. خان صاحب کو بھی بتاؤں گا اور یہ مجھے نقصان نہیں دے رہے ہیں. کمبخت میرے ساتھ بغض معاوے میں پارٹی کے کاس کو نقصان دے رہے ہیں. نہیں، اس لیے آج خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ میں چونکہ یہ میلیشیس پراسیکیوشن میری کروائی گئی ہے، سیاسی بنیادوں پہ یہ کیس بنوائے گئے ہیں، اس لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جو میرے خلاف اپروور بن گئے تھے ان اپروور پہ اور میں چیئرمین نیب پہ خود کیس کروں گا، اور وہ کیس اس میلیشیس پراسیکیوشن کے لیے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے آج اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا بی بی کی صحت کے بارے میں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی کو کوئی زہر نہیں دیا گیا ہے. ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کی ٹیسٹ ہر صورت ہونے چاہیے. آج بھی ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ بی بی کے ٹیسٹ ہوں گے اور ٹیسٹ شوکت خانم ہاسپٹل میں ہوں، اور ٹیسٹ میں ان کا اپنا معالج ڈاکٹر موجود ہو، اور اس کے بعد جو ٹیسٹ آئے اسی رپورٹ کو ہم ایکسپٹ کریں گے. یہ ہم نے مطالبہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس ہفتے اس پہ عمل درآمد ہوگا. خان صاحب نے آج اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، درخواست دی جاتی ہے، ریکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے، اور ریکاؤنٹنگ میں اس کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدل دیا جاتا ہے، اس کی جیت کو شکست میں بدل دیا جاتا ہے. ہم اس کا اعادہ کرتے خان صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ 1971 کی طرف آپ حالات کو لے کے جا رہے ہیں. اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا. حمود الرحمان کمیشن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس پارٹی کو میجارٹی ملی تھی آن پرپس اس کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا، بائی الیکشن کروائے گئے اور میجارٹی کو مائنارٹی میں تبدیل کرایا گیا. ہم وارن کر رہے ہیں، ہم استدعا کر رہے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روش کو روکا جائے. الیکشن کمیشن جو تھرو آؤٹ اس پیریڈ آف ٹائم اپنے آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے، ہم الیکشن کمیشن سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی جیت کو شکست میں بدلنے کا سلسلہ فی الفور روکا جائے. اس سے حالات خراب ہوں گے، اس سے پارلیمان کی جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گی. ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم پارلیمان کا حصہ ہے، اپنا رول ایز اپوزیشن پارٹی ادا کرنا چاہتے ہیں. آپ اس میں غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیاں بند کر لیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدلنے کی مزید کوشش نہ کریں. ساتھ ہی ساتھ آج پولیٹیکل باتیں بھی ہوئی خان صاحب کے ساتھ. سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن جو کے پی کے الیکشن پوسٹپون کرائے گئے. ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ جب تک الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہ ہو تو آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن نہ کرائیں، آپ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن نہ کرائیں. لیکن اس وقت کہا گیا کہ یہ الیکشن ہو سکتے. پھر کے پی کے کو کیوں ڈسکریمنیٹ کیا گیا، کیوں وہاں الیکشن نہیں کرائے؟ اب جب کہ کے پی کے ریپرزنٹیشن الیکشن میں نہیں ہے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ الیکشن نہ کمپلیٹ ہوئے ہوں، جب تک کے پی کے سینیٹر نہ آئے ہوں، تب تک سینٹ کی الیکشن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی الیکشن نہ ہو. یہ ہمارا مطالبہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہتے ہیں آج خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے سینٹ میں ہمارا اپوزیشن لیڈر علی ظفر صاحب ہوں گے، اور سینٹ میں ہمارے پارلیمانی لیڈر اون پپی صاحب ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات اٹھائیں کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو
जब तक KPK के सेनेटर वापस ना आए हों। अच्छा, ये बताइए कि आप कल भी तमाम ने कहा कि आगे सफर में अपना अपील और साफ हो। आज खान साहब ने भी इस बात का एहतराम किया है कि कुछ लोग हमारी पार्टी में ऐसे हैं कि इस करते हैं और उसके बाद ऐसे बयान जारी करते हैं, बयान जारी किया जाता है। ऐसे कौन से लोग हैं आपके सफर में जिस के साथ बाबत में हैं और आपकी पार्टी के साथ बयान जारी किया? देखिए, वो शहरियार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा। शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। अगर आप वो लीडर है हमारा और हमारा हीरो है, उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन मेरे दिल में और हमारे सब के दिलों में शहरियार अफरीदी साहब की बहुत बड़ी जगह है। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज उठाई है, वो हम हर पर मैं तायीद करता हूं। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तबयीन है। देखो, हमने उसका जिक्र किया है। डॉक्टर साहब ने फिजिकल मुआयना किया। फिजिकल मुआयना से स्लो पॉइजनिंग का कोई असर नहीं पड़ता। स्लो पॉइजनिंग का आपको तब पता चल जाता है जब आप टेस्ट करते हैं, जब सारे टेस्ट करते हैं। और इसके लिए जो डॉक्टर है वो आएंगे, वो टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड है। इसलिए हमारा मुतालबा कि पहले टेस्ट हो और ये क्लियर हो, क्योंकि इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और साहब ये बताइएगा, आज खान साहब ने बताया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनको कत्ल करने का मंसूबा जो है वो तैयार किया गया था और मुगला की जानिब से काबिल वक्त जो है वो खान साहब को आगाह किया गया और उनकी जान जो है वो बच गई थी। तो ये बताएं, अगर इस मंसूबे का आपको उस वक्त पता चल गया था तो आपने कोई इसके खिलाफ कोई दरखास्त क्यों नहीं दायर की? और दूसरे नंबर पर ये बताइएगा, उन्होंने बताया कि जो आरफ अलवी हैं उनके जरिए उन्होंने आसिम मुनीर को एक मैसेज भिजवाया था और उसमें उन्होंने बताया था कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं। और आसिम मुनीर ने भी उनको ये गारंटी दी थी कि वो भी इनके खिलाफ नहीं है। अगर उस वक्त ये चीजें तय हो गई थी तो आप कौन सी ऐसी चीजें जो बीच में माजराई जो है वो की जा रही है और अभी भी वो आसिम मुनीर का बरह रास्त नाम ले रहे हैं कि अगर बुशरा बीबी को या मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर पर आए? देखिए, इस वक्त वो जेल में है और जो बुशरा बीबी है वो घर में अकेली है, दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है और जिसकी कस्टडी में वो है। तो ऑब्वियसली सही फरमा रहे हैं कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होंगे, कौन ये सारा कुछ करा रहा है। वो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है। जहां तक कम्प्लेक्स की बात है तो आप कम्प्लेक्स की वीडियो दिखा के देखें, वहां जितने वकलात है उससे 10 गुना ज्यादा आपने देखे कि वो सारे FC वाले लोग बैठे हुए थे। हमें चलने की जगह भी नहीं मिली थी और वो सारे वीडियो आपने देखे तो जिस वक्त खान साहब आ रहे थे तो जिस तरीके से शेलिंग की जा रही थी वो सब ने देखा हुआ। गौर साहब, ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा है कि जो सियासी कमेटी तश्कील की है जिसमें 14 लोग शामिल किए गए, ये कमेटी जो है सियासी फैसले करेगी जमात में। जी हाँ। और जो कोर कमेटी है वो इन फैसलों की तौसीक करेगी। ठीक है, ये बताइएगा कि जो इससे कबल कमेटी बनाई गई थी, जो फोकल पर्सन की कमेटी, उनकी तब्दीली की वजह कोई ये तो नहीं कि जो बुशरा बीबी ने इल्जाम लगाया था कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट लगा होने का इल्जाम? नहीं, देखो वो अलग है। बात से बात करी हम समटाइम कर देते हैं पार्टी में कि हम हमेशा नोटिफिकेशन कर देते हैं। अब अदरवाइज तो ज्यादातर पार्टियों में नोटिफिकेशन नहीं भी होता। जो पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है वो पॉलिटिकल कमेटी है और पॉलिटिकल मामलात को वो देखेगी। छोटे थोड़े से मेंबर है और सारे सूबों की उसमें नुमाइंदगी है, वो हमने रखे हुए हैं। तो जिस एक्सटेंट ये पॉलिटिकल पार्टी है। जहां तक फोकल पर्सन की, तो फोकल पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए रखा था, क्योंकि जेल के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं और ज्यादातर वो हमें ये कहते हैं कि 1-2 बंदों का ऐसा नाम दे दें जो हमें नाम बताएं कि किन लोगों ने खान साहब से तर्ज वाले दिन मिलना है। सो फॉर दैट पर्पस हमने उसमें नाम ऐड कर दिया। खान साहब ने ये भी कहा है कि कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर जिनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ रखते हैं।
और उन लोगों को देखकर ही हम जो सियासी मामला थे उनमें चेंज ला रहे हैं। तो क्या ये दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं? खान साहब का वसी तजुर्बा है और वो जानते हैं, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो खान साहब फरमा रहे हैं सही फरमा रहे हैं, जो भी होगा। लेकिन एनीवे कोई पॉइंट आउट नहीं कर सकता। न खान साहब ने किसी का नाम लिया, ये पार्टी का इंटरनल मामला है। अगर किसी पे वो करते हैं तो अलग बात है। साहब, राहियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। कल ख्वाब जो नहीं रहाओगे तो क्या वापस पीटीआई में आएंगे? तो क्या अगला नंबर किसका? नहीं, देखो, जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, जो बयानात दे चुके हैं, जो पार्टी के खिलाफ स्टैंड ले चुके हैं, वो सारे लोग ऐसे हैं। इनको वापस पार्टी में आना ये खान साहब फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला खान साहब जब रिहा होंगे उस वक्त देखेंगे कि किस किस ने वापस पार्टी में आना है। एक तासुर ये भी है कि शेर अफजल बरवत की पब्लिक अपेयरेंस बहुत ज्यादा है, ये बहुत एक्टिव है और पार्टी के अंदर कुछ लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको बैकफुट पे ले गए।